السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 28 ہے۔ ہم نے کل سے بات شروع کی تھی لباس اور زینت کے بارے میں، تو کپڑوں کے بارے میں نے کل بات کی۔ آج ہم جو ہے وہ زینت میں بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، بال ہے، میک اپ ہے، ساری چیزیں پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک چیز کل رہ گئی تھی رنگ کے بارے میں۔ مردوں کے لیے 2 رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 2 رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں۔ 2 رنگ سے مراد یہ ہے، ایک تو زعفرانی کلر ہے، بھگوا کلر جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک سرخ کلر ہے، فل ریڈ کلر ہے۔ یہ بچے جو لوگ ٹی شرٹ وغیرہ فل ریڈ پہنتے ہیں، یہ منع ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر دھاری ہے یا کوئی بھی اس میں مکس کلر ہو گیا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن ٹوٹل جو ہے وہ ریڈ کلر کی ٹی شرٹ ہو یا جوڑا ہو یا کپڑا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دونوں روایتیں جو میں نے نقل کی آپ کے سامنے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کے سلسلے میں بہت سی چیزیں پالیسی کے طور پر اگر آپ پہلی بات جانیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مردوں کے سلسلے میں بال جو ہے وہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مڈانا سنت ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ اور مردوں کا مڈانا لگاتار اگر یہ کوئی سمجھتا، آپ مڈا رہے ہیں الگ بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ کر مڈا رہے ہیں کہ مڈانا کوئی سنت ہے، مڈانا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں شاید 3 یا 4 مرتبہ سر مڈایا ہے، اور وہ بھی مڈانے کی وجہ کیا ہے؟ حج کا موقع ہوا ہے یا عمرہ کا موقع رہا ہے، ورنہ عام حالت میں آپ کبھی سر مڈا نہیں رکھتے تھے۔ کوئی رکھ رہا ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، سبھی کو بتایا، حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، کہ دیکھو جب آدمی پاکی کا غسل حاصل کرتا ہے اور ایک بال بھی اگر اس کا سوکھا رہ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ریگستان کا علاقہ ہے، پانی کی شارٹیج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہتر یہ ہے کہ سر ہی مڈایا جائے، بال رہے ہی نہیں، تاکہ پانی کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بال اپنا مڈاتے رہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بال نہیں مڈایا ہے۔ بہرحال بالوں کے سلسلے میں، مردوں کے سلسلے میں پالیسی یہ ہے، اسی طرح موچھ کے بارے میں بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موچھ کا مڈانا سنت ہے، موچھ کا مڈانا قطعی سنت نہیں ہے۔ آپ مڈاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کر اگر آپ کر رہے ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ موچھ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے وہ فرمائی کہ جو بال پانی پیتے ہیں ان کو کاٹنا، قص الشوارب آپ نے فرمایا۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ منع ہے کہ ان باتوں کو، بالوں کو چھوڑ دیا جائے جو پانی پیتے ہیں۔ تو جو سامنے ہونٹ کے نیچے آتے ہیں ان کا کاٹنا کیا ہے؟ ان کو چھوڑ دینے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ اور آئیے کہ موچھ مونڈنا یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں موچھ نہیں مونڈی ہے۔ یہ سب ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہم اپنے طور پر پیدا کیے ہوئے ہیں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو مکروہ کہتے ہیں کہ اگر موچھ کوئی مونڈتا ہے تو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ تو بہرحال سنت سمجھ کے نہ کرے، کیونکہ ذاتی معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جس کا جو چاہے مونڈے، جس کا جو چاہے مونڈے ہی مونڈے۔ اسی طریقے سے بہت ابھی ہم مسئلہ نہیں شروع کر رہے، ایک اور غلط فہمی ہے داڑھی کے بارے میں۔ یہ داڑھی جو دوسرا جو ہونٹ ہوتا ہے نیچے والا، اس کے اور داڑھی کے بیچ میں ایک چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے جس کو بچی کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ بیچارہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو مونڈ رہا ہے، حالانکہ وہ داڑھی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک دم داڑھی کے حکم میں ہے اور اس کو داڑھی ماننا چاہیے، اس کو آپ مونڈا نہیں سکتے، ورنہ داڑھی مونڈنے کا جو مطلب گناہ ہے وہ اس میں بھی شامل ہو جائے گا۔ بہرحال مردوں کے سلسلے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، بال رکھنے کے سلسلے میں
کہ बाल सर का कुछ हिस्सा रखा जाए और कुछ हिस्सा काटा जाए, यानी मूंड दिया जाए, ये इस्लाम में एकदम मना है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं और समंदर हैं इल्म के। बहुत कम उम्र पाई अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, 54 साल की उम्र पाई है। और अगर उनकी जिंदगी का जो उन्होंने लिखा है, जो किताबें लिखी हैं, अगर उनके बालिग होने के बाद उनकी जिंदगी को डिवाइड किया जाए कि पर डे कितना लिखते रहे होंगे, तो 80 पेज का एवरेज आता है। जितना उन्होंने लिखा है अगर उसकी पूरी जिंदगी से डिवाइड कर दिया जाए तो कम से कम 80 पेज पढ़ते नहीं थे, 80 पेज डेली लिखते रहे होंगे, तब जाकर के उनकी किताबें क्या होती हैं, सामने आती हैं। बहरहाल बहुत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह ताला उनके खबर को नूर से मामूर फरमाए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। उन्होंने 3-4 चीजें इकट्ठा की हैं। ये सर के बाल पर उन्होंने कहा है कि ये बाल थोड़ा रखना, थोड़ा मुड़ाना, उन्होंने कहा ये सर के साथ जुल्म है, सर के साथ जुल्म है। उन्होंने कहा ऐसी कई बातें हुजूर ने मना फरमाई हैं। मिसाल के तौर पर आएगा अभी आगे कि एक आदमी एक जूता पहने और दूसरे को नंगा रखे पैर को, उन्होंने कहा ये पैर के साथ जुल्म है। इसी तरीके से अगर आप कभी ऐसा लेटे कि हाफ बॉडी, हाफ बदन धूप में हो और हाफ बदन क्या हो, साए में हो, हुजूर ने इसे भी मना फरमाया। ये बदन के साथ जुल्म है। ये देहातों में सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है कि वो धूप आती है तो तेज भी लगती है और कभी उसकी जरूरत नहीं होती, तो क्या करते लोग, चारपाई ऐसे बिछाए रहते कि आधी धूप में रहे आधी साए में रहे। तो इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये बदन के साथ जुल्म है, वो पैर के साथ जुल्म है। ऐसे ही उनका कहना यह है कि ये जो बाल के बारे में बता रहे हैं कि थोड़ा रखा जाए, थोड़ा मुड़ाया जाए, ये एक जुल्म है सर के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बुनियादी पॉलिसी मर्दों की क्या है, आप पूरा बाल रखें या पूरा बाल मुड़ा लें, या आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा रखें। लेकिन ये जो चक्कर आजकल चल रहा है, जितने चक्कर बाल के चल रहे हैं कि पूरा पूरा किनारे किनारे एकदम मुड़ा दिया गया और बीच में बाल को क्या कर दिया गया, रख दिया गया, ये नाजायज नहीं है, ये हराम है। ये नाजायज की कोई बात नहीं है, एकदम हराम है। ये हमारी औरतों को भी चाहिए। अब जैसे मेरे साथ होता बच्चा है, बच्चा तो खुद से बाल कटवाने नहीं गया है, कौन गए हैं, अम्मी या अब्बू ने बाल कटवाया है, तो बच्चा गुनहगार नहीं होगा, जब तो बालिग होगा वो गुनहगार होगा। लेकिन जो छोटे बच्चों के साथ किया जा रहा है, ये अम्मी अब्बू ने को या बाल कटवाया खुद अपना, लिहाजा ये एकदम मना है। बाल के बारे में सख्ती से इस पर इस्लामी पॉलिसी पर अमल होना चाहिए। इसी तरीके से फैशन के तौर पर हर वक्त जो है ना वो कंघी करते रहना भी मना है। आपको मालूम है कॉलेज वगैरह में हम जब पढ़ाते थे तो ये बड़ी शिकायत प्रिंसिपल ने किया कि इतना साहब बहुत जल्दी जल्दी बच्चे जो है टॉयलेट जाते रहते हैं, कितना इनको पेशाब लगता है। तो हमने कहा ये टॉयलेट नहीं जाते हैं, ये तुमने टॉयलेट में जो पूरे वॉश बेसिन के सामने शीशे लगवाए हैं ना, ये शीशे उखड़वा तो टॉयलेट जाना बंद हो जाएगा इनका। तो उन्होंने कहा कि उससे हमने कहा जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने पूरे शीशे उखड़वा दिए, दूसरे दिन टॉयलेट जाना बंद हो गया, क्योंकि वो हर 15 मिनट आधा घंटे के बाद जा रहा है और अपने बाल सुजग कर रहा। तो ये क्या है, ये एक फैशन बन गया है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेमतलब हर वक्त कंघी करते रहना, हर वक्त शीशे के सामने खड़ा रहना, ये अच्छा नहीं। ये एक अलग बात है, अगर किसी के बाल बड़े हैं तो उनको सुलझाए रखना भी सुन्नत है, बालों को उलझाए रखना। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरता एक साहब को देखा बिखरे बाल एकदम, जो बाल लोग समझते हैं ना कि ये कोई बुजुर्गी है, इस तरीके से रहना। खुद नगर में क्या कहते तुम्हें कुछ ऐसी चीज नहीं मिली कि आप अपने बालों को सुधार लें। तो इस्लाम जो है ना वो इस किस्म की कोई छाप नहीं छोड़ना चाहता है कि जिससे इस्लाम को के बारे में लोग गलत रवैया रखें। एक साहब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए तो वो समझे कि बुजुर्गी की अलामत ये है ना बहुत धीमे धीमे चलो, बहुत झुके झुके चलो, होते ना बाल लोग स्टाइल करते हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा, कहा इनसे जाकर के बोलो हजरत से कि इस्लाम बीमार नहीं है, इस्लाम बीमार नहीं है, ये जो सब आप लोग एक्टिंग कर रहे हैं ये एक्टिंग छोड़िए। तो इसी तरीके से बालों को गंदा रखना या कपड़े को गंदा रखना ये कोई बुजुर्गी की अलामत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के बाद सबसे पहली आयत नाजिल हुई, उसमें जो बात कही गई मालूम क्या कहा गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर
वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फताहिर। मोहम्मद राधा आप अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल के जमाने से बहुत पहले से बुजुर्गी की अलामत मानी जाती थी गंदे रहना। आज भी आप देखें बहुत बुजुर्ग है, राल टपक रहे, जितनी ज्यादा नंगे बाबा, डंडे वाले बाबा, ये सारे बाबा आपने बना रखे हैं। ये कोई बाबा नहीं होते हैं, ये बाबा हमने बना रखे हैं। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई भी बुजुर्ग नहीं इस दुनिया में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत डिसेंट रहते थे है? और जैसा माहौल, जैसे कोई बड़ा आदमी आ गया मुलाकात करने के लिए तो आप उससे स्टेटस के लिहाज से मिलते थे, आपके पास अलग से कपड़े होते थे, क्योंकि आप एक जमाने के बाद रूलर भी हुए, हाकिम भी हुए, तो आप उस तरीके से रहते। तो आपने पूरी दुनिया वालों को हर तरीके से उस 23 साल की जिंदगी जो आपकी आफ्टर नबूवत है उसकी में आपने हर चीज हमको सिखलाया है। सिर्फ नमाज पढ़ने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखलाया है, लेकिन पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है। जब सलमान फारसी से यहूदी ने इतराज किया कि यार तुम कहते हो ये सैयदुल अंबिया हैं, इतने बड़े नबी हैं, तो ये इतने बड़े नबी हैं, काम इनके कितने छोटे छोटे हैं, ये पेशाब करने का तरीका तक बताते हैं, ये कोई काम है बड़े आदमी का? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं इसी बात पे तो इस बात पर फख्र करता हूं कि जिसने पेशाब करने का तरीका तक बताया है, उसी बात को उन्होंने इस अंदाज में पेश किया कि हम उसी नबी पर कुर्बान जाते हैं कि जिसने पेशाब करने का तरीका तक भी हमको बताया, उसमें भी हमको डार्क में नहीं छोड़ा। तो बहरहाल ये जो बार बार बाल को कंघी देना है वो महज एक फैशन और वक्त की बर्बादी है। इसी तरीके से मुस्लिम की शरह है, इमाम अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, आड़ी मांग निकालना, आड़ी मांग निकालना भी मना है। आड़ी मांग समझते टेढ़ी, औरतें भी क्या करती हैं, कभी राइट साइड निकाल देती हैं, कभी लेफ्ट साइड निकालती हैं। मर्दों के लिए भी अगर मांग निकालना है तो बीच की मांग सुन्नत है। ये जो साइड में मांग निकाली जा रही है, चाहे औरत निकाले चाहे मर्द निकाले, दोनों मांग सुन्नत के खिलाफ है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादातर से क्या होता था कि आपके बाल इतने लंबे होते थे कि पीछे से जब आप झाड़ते थे तो पीछे तक बाल चले जाते थे, मांग निकलती ही नहीं थी। और अगर कभी मांग निकली नजर आती थी तो एकदम बीचों बीच में मांग निकलती थी। हम लोगों ने आज क्या समझ रखा है कि मर्द लोग टेढ़ी मांग निकाले और औरतें बीच में निकाले, दोनों बातें गलत है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि जो है वो कदा कहते हैं कि बाल को थोड़ी से रखना और थोड़े से छोड़ देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इजलूहु कुल्लु, या तो पूरा रख लो, वतरुकुहु कुल्लु, या तो पूरा छोड़ दो। ये आधा आधा जो तुमने कर रखा है ये एकदम मना है। एक और बुरी मालूम नहीं, आप लोगों को मालूम है नहीं कि बाद बुजुर्गों के नाम पे बाल छोड़ा जाता है और बाल का एक हिस्सा छोड़ा जाता है चोटी के नाम पर, शिर्क है वो, तो कतान मना है और उसके साथ साथ क्या है, शिर्क है। ज्यादा इससे जो है वो परहेज करना चाहिए। इसी तरीके से औरतों के सिलसिले में है कि औरतें बाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास से बुखारी की रवायत है कि एक औरत आई और उसका बाल बीमारी की वजह से झड़ गया था, तो अब उसकी शादी का मामला था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा कि इसको विग लगा दी जाए, बाल इसके जोड़ दिए जाए। ये आपको बता दें एकदम मना है औरतों के लिए और मर्दों के लिए। ये जो विग लगाते हैं चाहे औरत लगावे और चाहे मर्द लगाए, दोनों के लिए कतान मना है। बाल में बाल जोड़ना, ऐसा जोड़ना कि ये पता नहीं चलना कि ये इसका ओरिजिनल बाल है या ये कि इसका डुप्लीकेट बाल है, ये धोखा है और ये कतान मना है। इसका उल्टा कर लीजिए, मिसाल के तौर पर औरतें क्या करती हैं कि बाल में चोटी लगाती है जो धागे की होती है, वो जायज है। क्यों? वो आपको मालूम होता है कि ये इसका ओरिजिनल बाल नहीं है बल्कि ये अलग से क्या की गई है, चोटी लगाई गई है, वो जायज है, क्योंकि उसमें उसको हम मतलब देखने वाले को कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बाल गूंदने के बारे में भी जो है बुखारी की रवायत है कि ये एकदम मना है कि औरत हो या मर्द हो अपने बाल को बड़ा करने के लिए या बाल के ऐप को कुछ छोटा रखना है, छोटा होने की वजह से छुपाने के लिए उसमें विग लगाना जो है वो मना है। अब बाल के सिलसिले में बाल को जो कलर किया जाता है, एक बात बता दें पॉलिसी के तौर पर, तो मुफ्ता भी कौल यही है, अगरचे इख्तलाफ है इसमें भी, वो ये है कि बाल मर्द और औरत दोनों भी काला के अलावा जो चाहे कर सकते हैं।
कोई भी कलर करना चाहे मर्द या औरत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काला नहीं होना चाहिए। काला से मुराद क्या है? कंप्लीट काला। अगर एक आदमी ब्राउन किए हुए है या काला से कम हल्का काला किए हुए, ये सबकी इजाजत है, लेकिन टोटल काला की इजाजत नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मना फरमाया है। हाँ, अगर इसमें यह फतवा दिया गया है कि अगर कोई बच्चा है और कभी कभी छोटे बच्चों के या जवान आदमी है 20-22 साल का है और उसका बाल सफेद हो गया है, तो फिर अगर वो काला करना चाहे तो कर सकता है, इस पर फतवा है, क्योंकि वो धोखा नहीं दे रहा है, उसकी बीमारी की वजह से, किसी वजह से उसका बाल सफेद हो गया है, लिहाजा काला करने के बारे में एकदम मना है। उसके अलावा जितना भी खिताब आप लगाते हैं, जिस कलर का भी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, काला नहीं हो वो क्या सब जायज है। इस वक्त एक चीज और आ रही है, उससे एहतियात करना चाहिए। ये जो कलर लगाया जा रहा है, एक कलर तो वो है जैसे मेहंदी है, मेहंदी आपने लगाई, चाहे बाल में लगाई चाहे हाथ में लगाई औरतों ने, और मेहंदी धुल दी गई, तो मेहंदी ने अपना कलर छोड़ दिया और बकिया जो कुछ था वो धुल कर क्या हो गया किनारे हो गया। आजकल एक जो कलर आ रहा है वो कलर कोटेड है। अब जैसे आप दीवार पर पेंट करते हैं तो अगर आप उसको खुरचेंगे ना तो पेंट निकलेगा, तो पता चला दीवार पेंट के पीछे है। अगर आप इसी तरीके से वो जो कलर आ रहा है अगर आप बालों में लगा देंगे ना तो बालों को कोट कर देता है, कोटेड है वो। अगर बाल को खींचेंगे आप ऐसे ना तो मैल की तरीके से उसमें से क्या है वो निकलेगा। अगर ऐसा कलर है, ऐसा खिताब लगाया गया है तो फिर इससे न गुस्ल होगा और न वजू होगा, क्योंकि वो कोटेड चीज है और कोटेड चीज की वजह से बाल पर पानी नहीं पड़ रहा है, बाल की जड़ों में पानी नहीं जा रहा है, लिहाजा वो इसका खास ख्याल रखे। आजकल ऐसा आ रहा है। मेहंदी भी बात ऐसी आ रही है कि मेहंदी लगा लेती हैं औरतें, देखने में उस वक्त लगती है कि कलर छोड़िए, कुछ देर के बाद क्या करती है मेहंदी, जब जो पुरानी हो जाती है तो मैल के तरीके से क्या है छूटती है। अब उसमें थोड़ा सा मेहंदी के बारे में ये बात आ गई तो बता देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो इतनी हल्की होती है कि उस पर वो गर्चे कोटेड नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद उसके नीचे उसमें से पानी क्या होता है चला जाता है। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोटेड ऐसी है कि पानी नहीं जाता है तो फिर ऐसी शक्ल में न वजू होगा और न गुस्ल होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आटा गूंधा, आटा गूंधा के बाद रोटी बनाई, रोटी बना लिया, रोटी बनाने के बाद आपने वजू किया, नमाज पढ़ी। अब वो जल्दी जल्दी में वजू बनाया होगा और वो क्या हुआ, नमाज पढ़ने के बाद, वजू बनाने के बाद आपने देखा कि वो जो आटा गूंधा हुआ था तो आटा नाखून के ऊपर कोटेड हो गया, हो जाता है। अब वो कोटेड हो गया, कोटेड होने के बाद जब आप वजू से फारिग हुई तो आपने देखा कोटेड है, तो फिर आपने अपना वजू दोहराया। तो ये जो आप नेल पॉलिश है वो भी इसी में है। ये जो नेल पॉलिश लगा, नेल पॉलिश तो कतई जायज नहीं है। अगर कोई औरत नेल पॉलिश लगा करके फिर वो वजू कर रही है तो वजू होता ही नहीं, गुस्ल होता ही नहीं है। हाँ, अगर किसी को शौक है आप नेल पॉलिश लगा ली, पहले वजू कर लीजिए, उसके बाद नेल पॉलिश लगा लीजिए। नेल पॉलिश बजाते खुद कोई हराम नहीं है, नेल पॉलिश कोटेड चीज है। अब मिसाल के तौर पर जिस वक्त औरतों को पीरियड आता है, अब उनको न नमाज पढ़ना है न उनको कुरान छूना है, ऐसी शक्ल में वो चाहे तो वो नेल पॉलिश लगा सकती है, क्योंकि वो वक्त वो कोटेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लगाया उन्होंने और नमाज पढ़नी हुई तो फिर वजू नहीं होगा। तो ऐसे ही ये बाल है, अगर वो कलर कोटेड हो गया तो फिर ऐसी शक्ल में चाहे मर्द लगावे और चाहे औरत लगावे, किसी के लगाने से बाल जो है वो वजू नहीं होगा और उसके ऊपर क्या है, क्या कहते हैं, न गुस्ल होगा न वजू होगा। इसी तरीके से बालों के सिलसिले में जो औरतों को मना है वो भवों का बनाना है। आप देखें, जो चीज अल्लाह के रसूल मना करते हैं दुनिया उसी को फैशन में लेकर आती है। ये एक पॉलिसी है दुनिया वालों की। हमको ये बात नहीं आइडिया लगता है, लेकिन ये जितने डिजाइनर हैं, चाहे कपड़े के डिजाइनर हो और चाहे बॉडी को मेकअप करने के डिजाइनर, हर वो चीज लेकर आई जाती है जो कुरान हदीस में क्या होती है, मना होती है। अब मेकअप में अगर देखा जाए तो औरत की कोई चीज मना ऐसी नहीं है। लिपस्टिक का लगाना है, गाल पे जो लगाती हैं, कुछ भी लगाने के सिलसिले में एक ही चीज मना है बुनियादी तौर पर, क्या है कि भवें बारीक नहीं करना। ये जो भव होती ऊपर वाली, इस सारी औरतें क्या कर रही हैं, उसको बारीक कर रही हैं, वही मना है। ज्यादा ऐसी औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसाई शरीफ की रवायत है कि ऐसी औरतों पर जो है वो अल्लाह की लानत है जो अपनी भवें बनाती हैं। इसमें एक चीज अलग है